Hi friends, now we come at the chapter 2 MPC 001 Cognitive Psychology. The chapter is learning and memory. Now start with the basic question, basic introduction of learning and memory. Now start with learning. What is learning? Learning is the process of acquiring new knowledge, new behavior, new skills, new perceptions, etc. and may involve synthesizing and process different type of information. हम सिंपल भाषा में कहें तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम न्यू बिहेवियर, न्यू स्किल्स सीखते हैं और उनको हम रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, he suggested three domains of learning, which are cognitive, second one is psychomotor, and the third one is affective. Now take a simple example of playing chess. Firstly, when a person starts to play chess, firstly he learns the rules of the game and processes of the game, how it is need to play and how we can learn. The second phase is using the equipment or the pieces of the chess and how to put them on board and how to place them as per rules from one step to second step and third step, their directions, etc. This is called psychomotor stage. The third one is affective. When he continue plays, understanding the all rules, and he now become beloved with the game. This makes the persons gaining the information larger amount because he love this process. As per, अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि जब हम सबसे पहले किसी प्रोसेस या गेम को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बेसिक नियम सीखते हैं कि उसे खेलना कैसे है, रूल्स क्या हैं गेम के. सेकेंड स्टेज में हम अपने बॉडी पार्ट्स को या सिंपल कहें हम मैनुअल वे में सीखते हैं कि उसको खेलना कैसे है, बोर्ड के चेस के पीस को रखना कैसे है, उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ले जाने के क्या नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेके जाते हैं. द थर्ड वन इज़ अफेक्टिव. जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और हम उसके आदी हो जाते हैं, मीन्स आदी हो जाना एक तरह का लव है उस चीज़ से रिलेटेड, और इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग या फिर कहीं गेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन लार्ज अमाउंट, हम सीखने की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है और लर्निंग हमारी ज़्यादा हो जाती है. मेमोरी मीन्स स्टोर समथिंग. देयर इज़ थ्री टाइप ऑफ मेमोरी in a human. First one is sensory memory. Sensory memory, brain understand the information in the form of electrical signals, but we can't see it. These electrical signals are called nerve signals. These are available only just for few seconds, half second to 2 seconds. It is in which he define the change of energy from one phase to another phase. Or simply we can say that if we see something here, visual scene is changed into the electrical signals and it sent to our mind by the receptors, which changes due to the energy. But brain understand only the electrical signals which are produced by our senses. Our senses, we have different type of senses: eye senses, smell senses, taste senses, etc. These senses have only
provide information just half second to 2 or 3 second. But which information is meaningful, it is depends on the two factors. First one is the paying attention on stimulus. If we are looking something interesting, then we can say that our sensory receptors send this information to the short term memory. And if any information which activates the new pattern for mind, it also send the information to the short term memory. Now discuss the short term memory. Short term memory, it is also called working memory, just as a computer which is used for the current time use memory. Short term memory has value time is 2 second to 15 second, in which we can see, we can smell, or immediate use processes, so that we can use the information for current use. Not every information is sent to the long term memory. The sending of here short term memory is also categorized in three types: iconic memory, acoustic memory, working memory. Iconic memory means which something we see, we can see it is give to our mind in the form of images. Acoustic means sound energy, या sound information. And the working memory is use of these information for the current time use. जैसे कि हमने अभी किसी चीज़ को देखा, वो हमें इंटरेस्टिंग लगी, हमने उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लिया और उसको देख के हमने जस्ट स्किप कर दिया। मीन्स उस टाइम हमने उसको देखा, उसका यूज़ किया और हम नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए। वो मेमोरी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसका कोई बेस नहीं बना है। जॉर्ज मिलर एक साइंटिस्ट थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक मैजिक नंबर भी दिया है। उस एक्सपेरिमेंट को जब आप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि उन्होंने 5 और 7 एक मैजिक नंबर दिया है। उन्होंने बताया है कि हम 5 से या 7 सेकंड के लिए ही इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइम में। उन्होंने बताया कि अगर कोई 10 अंकों का नंबर है तो हम उसको कभी भी डायरेक्ट वन टाइम में कंप्लीट याद नहीं कर सकते। हम उसको क्या करेंगे, या तो हम उसको 2-2 के पेयर में बांट लेंगे, या पहले 2-2 के पेयर फिर 3 का पेयर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि हम उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करके अपने यूज़ की इंफॉर्मेशन ले सकें। जैसे कि आपको कोई मोबाइल नंबर डायल करना है तो और आपके पास कॉपी पेन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, ब्रेक करेंगे 2-2 को, 9977 9977 5858 ऐसे करके। नाउ कम टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स विच होल्ड्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपको 10 साल पहले की क्या याद है, तो आप बताएंगे कि आपको उस समय का वो सिचुएशन याद है। वो ही सिचुएशन आपको क्यों याद है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ जब आपने वो इन्फॉर्मेशन याद की थी तब आप उस इन्फॉर्मेशन के साथ इमोशनली अटैच थे। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ जो शॉर्ट टर्म से मेमोरी लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र होती है, उससे पहले अगर उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकती। उसके लिए उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, और उसका मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। अगर उस इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंगफुल पर्पज़ नहीं आ रहा शॉर्ट टर्म मेमोरी का, शॉर्ट टर्म प्रोसेस का, तो वो मेमोरी कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। तो हम समझें कि किसी इंफॉर्मेशन को अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
आपको उस इवेंट को इमोशनली अटैच करना होगा और उसका कुछ मीनिंगफुल बनाना होगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो लोग डीप मेमोरी या फिर जो मेमोरी इन्हांस प्रोग्राम चलाते हैं वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप किसी इवेंट को सोचिए, उसको मज़ेदार रूप में बना दीजिए और अब आप देखिए कि उसको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ कोड डालिए। जब आप उस कोड को याद करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेमोरी और लर्निंग के बारे में ये शॉर्ट वीडियो? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।